Hello, welcome to the Khan Life Studies. Today we will discuss the effect of conversion under Hindu law. Question arises: right to conversion of religion in India and effects of conversion from Hinduism under Hindu law. Right to religion and conscience. इसके बारे में आप जानते हैं कि धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकार है। एवरी इंडिविजुअल हैज ए नेचुरल इंटाइटलमेंट ऑफ रिलीजियस फेथ एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ए राइट टू अडॉप्ट or to abandon any faith of his own choice. Therefore, freedom of religion, freedom of conscience is fundamental right. It is also recognized under the international law. So, first of all, right to freedom of religion of his own choice or freedom of conscience. Right to adopt a religion or right to abandon a religion. Both are the fundamental rights under the Indian Constitution as well as it is internationally recognized law. In India, one can convert from one religion to another religion without force. One can convert to another religion by his free will. The Hindu law also allows to convert and reconvert as a Hindu from any other religion. The definition of Hindu that is given in Hindu Marriage Act, it recognized the converts and reconverts to the Hindu by religion. Any person who is a convert or is a reconvert to the Hindu religion is also called Hindu under the definition given in the Hindu Marriage Act. The effect of conversion from one religion to another religion. Number 1, it affects the marriage, the adoption, the guardianship and the succession. इसका प्रभाव कहाँ का पड़ेगा? मैरिज पर, एडॉप्शन पर, गार्जियनशिप पर एंड सक्सेशन पर. इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन मैरिटल राइट्स. नंबर 1 पॉइंट, मैरिटल राइट्स पर जो पार्टीज के राइट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कन्वर्जन बाय एनी आइदर हस्बैंड और वाइफ. अकॉर्डिंग टू Hindu Marriage Act, conversion from either party from Hinduism is per se a ground for seeking divorce. ये सेक्शन 13 में ये दिया हुआ है. It is one of the ground for seeking a divorce from the other person. It is recognized as a valid ground. If the husband renounces Hinduism, the wife can seek a divorce. Is it like vice versa? इसका लीडिंग केस है AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 1531. श्रीमती सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे? ए हिंदू मेल कन्वर्टेड इनटू इस्लाम फॉर द सेक of solemnizing another marriage. A Hindu who was married earlier converted into Islam for the solemnization of another marriage. The Supreme Court held that the conversion into another faith ipso facto does not dissolve the first marriage. Converting to another faith, it does not dissolve ipso facto the first marriage.
because of the fact that none is allowed to take the benefit of his own wrong. यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने का जो तथ्य है, जो फैक्ट है, ये अपने आप स्वयं में विवाह को विघटित नहीं करता है। इसका रीज़न बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये भी कहा गया, इट वॉज हेल्ड टू बी एन एक्ट ऑफ बाइगेमी, कि बिना पहला विवाह विघटित कराए यदि वो दूसरा विवाह करता है तो वो बाइगेमी का दोषी होगा। दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एज वेल एज पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ये लॉ ये क्लियर हो गया कि कन्वर्जन डज नॉट इप्सो फैक्टो डिसॉल्व्स एनी मैरिज। Without getting a degree of divorce, no one can get married to any other marriage. His act will be punishable under section 494. इसका रिलेटेड केस एक और है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस के पिटीशन में क्या कहा गया था? इसमें क्वेश्चन ये उठा था कि हस्बैंड वॉज गिल्टी ऑफ बाइगेमी अंडर सेक्शन 494 और इफ ही मैरीज अनदर वुमेन आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम। जो पहली बात कही गई थी कि यदि एक धर्म छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति रीमैरी करता है तो बाइगेमी का दोषी होगा। इसी को होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट पर्सन इज गिल्टी अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी। और ये कह दिया गया कि सच पर्सन गिल्टी ऑफ बाइगेमी इज नॉट वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो उसे दोषी करार दिया जा रहा है तो ये धारा आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है एंड सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट विल बी एप्लीकेबल। यानी सेक्शन 17 वो पनिशेबल होगा और उसे फंडामेंटल राइट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये डिसाइड हुआ है 2005 में। ये इफेक्ट हो गया मैरिज पर। अब देखिए मेंटेनेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है कन्वर्जन का। अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुइज्म ऑपरेट्स एज ए फॉरफीचर ऑफ द राइट ऑफ द कन्वर्ट टू क्लेम मेंटेनेंस। सेक्शन 24 में क्लियर कह दिया गया है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने के पश्चात वो व्यक्ति राइट टू मेंटेनेंस खो देता है। ही कैन नॉट क्लेम right of maintenance. When the husband renounces Hinduism, his Hindu wife becomes entitled to claim a right to separate residence and maintenance under section 18(2) of the Hindu Adoption and Maintenance Act. Section 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ऐसी पत्नी सेपरेट लिविंग, सेपरेट रेजिडेंस क्लेम कर सकती है कि अलग रहेगी और उजारा भत्ते के लिए भी वो इंटाइटल होगी। धारा 18 में ऐसा धारा 13 में आपने पढ़ा है कि आगे जाके ये भी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो जाता है। इफ द हस्बैंड हैज सीज्ड टू बी हिंदू, कन्वर्टेड टू नॉन-हिंदू faith, the wife is entitled to live separately without forfeiting the right of maintenance. If the wife also ceases to be Hindu, she loses her claim of maintenance under this section. Adoption पर क्या असर पड़ेगा? If the wife has completely renounced the word,
द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है. He has completely renounced the word or has ceases to be Hindu. यह हमारे काम की चीज़ है कि if a wife ceases to be Hindu, the husband gets right and capacity to take a son or a daughter in adoption with the consent of other wives living. यदि आज की डेट में तो अदर वाइफ लिविंग नहीं होगी, मीनिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ, विदाउट getting any consent, husband will be capable of getting into adoption any a son or a daughter. So this is the effect of the maintenance and the effect on the adoption. राइट टू गार्जियनशिप पर क्या असर पड़ेगा? इसमें प्री काउंसिल ने कहा था कि पैरामाउंट कंसिडरेशन इज द रिगार्ड टू द गार्जियनशिप इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर ऑफ द माइनर. ये भी लॉ है कि पैरामाउंट जो गाइडलाइंस होंगी वो होंगी द प्रिंसिपल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द माइनर. माइनर का कल्याण किसके द्वारा किया जा सकता है? विन द पेरेंट हैविंग गार्जियनशिप, जो माता पिता हैं, जो संरक्षक हैं, अगर वो उनमें से कोई एक अपने धर्म को त्याग देता है, यानी हिंदू धर्म को त्याग देता है, इट इज़ ए फैक्टर टू बी टेकन इन टू अकाउंट. ये एक तथ्य ध्यान में रखा जाएगा टू कंटिन्यू ए गार्जियन और नॉट. यहाँ भी वेलफेयर ऑफ द माइनर देखा जाएगा. फिर देखिए राइट ऑफ इनहेरिटेंस पर क्या असर पड़ता है. इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस in the family of the birth. A convert from Hinduism could not inherit to the Hindu relations. A convert from Hindu to another religion seizes the right of succession. इसी तरह under the Muhammadan law, a convert from Islam to some another religion is excluded from inheritance. मुस्लिम धर्म में यही प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को मान ले, अडॉप्ट कर लेता है, तो वो भी उत्तराधिकार का अधिकार उसका समाप्त हो जाता है. जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में अब वो नियर रिलेशन का उत्तराधिकारी नहीं रह जाएगा. ऑल्दो द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 हैज एब्रोगेटेड ऑल दीज रूल्स. In 1865, the Indian Succession Act was passed. 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट पास किया गया था एंड इट रेगुलेटेड सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिश्चियन. ये मेन मकसद था ईसाइयों की संपत्ति का उत्तराधिकार को रेगुलेट करना. वहाँ प्रश्न ये उठता था, क्वेश्चन अरोज वेदर इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट इट वाज ओपन टू द क्रिश्चियन who has been converted from Hinduism to elect to be governed by the Hindu law of succession. It was open to a Christian convert from Hinduism to elect to be governed by the Hindu law of the succession. इसमें कह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में आया है वो चुनाव कर सकता है कि वो हिंदू लॉ से हिंदू लॉ उस पर लागू हो. इस बात का वो चुनाव कर सकता है. तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इन इंडिया एंड इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुइज्म अंडर हिंदू लॉ ऑन फैमिली. यानी हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपनाने के पश्चात उसके ऐसे व्यक्ति के अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे. तो इसमें जो है पहला इसमें मैरिज का आ गया. मैरिज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा. फिर राइट टू मेंटेनेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट टू अडॉप्ट
ए चाइल्ड, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वो किसी नाबालिग बच्चे का गार्जियन है तो उसके अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इनहेरिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी इसको आप ब्रीफ कर दें कि इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अंडर द हिंदू लॉ। इट्स वेरी ब्रीफ क्वेश्चन, यू कैन आंसर वेरी वेल। केस लॉ आप सपोर्ट कीजिएगा, इसमें मेन केस लॉ सल्ला मुदगल और दूसरा है लिली थॉमस। ये दोनों इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और कोई ऐसा केस लॉ नहीं है जो आप सपोर्ट करें। इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।